আমি বলছি তোকে এই কথা বলছি, আর তো কিছু বই নাই। লাগবে 3 লাখ টাকা, আমি তোকে জেনে জেনে চাবি হ্যান্ড ওভার করবো, ঠিক আছে? তুই আমার বাকি টাকা দিবি, একটা রেট ফিক্স হবে। तो उसका अगर उतना ही हिम्मत है तो सामने आके बात करें ना, क्या दिक्कत है? मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े पे खड़ी हूँ जिस ज़मीन का नाता विवादों से रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी ज़मीन के लफड़े को लेके कई भूमाफियाओं ने सलाखों के पीछे कई रातें गुजार रही है। और एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि ये ज़मीन का टुकड़ा विवादों में है। हमारे पास सिलीगुड़ी एक्सप्रेस के पास कुछ वीडियो क्लिपिंग्स आए हैं, कुछ फ़ोन रिकॉर्ड्स आए हैं जिसमें कि वार्ड नंबर 46 के वार्ड काउंसलर दिलीप बर्मन का नाम सामने आया है और बताया जा रहा है कि इस विवादित ज़मीन को लेके यहाँ पे वो लोगों को दुकान मुहैया करा रहे हैं और उसके एवज में वो अच्छी खासी रकम की मांग कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पास कुछ जो तस्वीरें आए हैं उन तस्वीरों को भी मैं आपको दिखा रही हूँ और वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनाऊंगी जो स्थानीय लोगों के द्वारा भेजी गई है। আমি জমিতে আসলাম। কে কে আছে? সবাই আছে আমাদের। দিলীপদা? হ্যাঁ, দাদাও আছে। দিলীপ আছে? হ্যাঁ। দাদাকে বলিস নাই আমার কথা? কি? আমার কথা বলিস না দিলীপদাকে একটাও, আমার একটা দোকানের জন্য? এবার আমি দাদাকে সিঙ্গেলে পাই না বলবো। বল, যখন দিলীপদা সব করতেছে আমাদেরকে একটা দোকান দিবে না, বলে আমরা কি করবো বল? বাইরের ছেলে পায়ে যাবে, আমরা পাবো না? ওনাকে আপাতত আমাদের ব্যবসা সমিতি সব ক্লিয়ার হোক, তারপরে আমাদের লাইন দিবে তো বলছে? দিবে, এখনো কোনো শিওর নাই আমাদের। এই হ্যাঁ, ঠিক। হ্যালো, হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করছি। হ্যালো, হ্যাঁ ভাই, ও 12 দিন করে নিতে আসছি। দেখা করবি এখন এদিকে? ইনভাইটে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ গেছি, এখন পৌঁছাবো। শোন না, হ্যাঁ মানে এটা কি ফাইনাল দিলে পরে আমার কাছে পার্টি আছে ভাই। ফাইনাল কি ফাইনাল? মানে ফাইনাল দোকান পাবে তাহলে আমি 3 লাখের জায়গায় কি 10 লাখ উঠাই দিব আমার পার্টির সঙ্গে। আরে ফাইনাল দোকান পাবে যদি মনে কর না পায়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে পয়সা ওয়াপাস করা হবে। কে এটা গ্যারেন্টি কে নিবে? পয়সা নিবে কে? পয়সা নিব আমি নিব। তুই নিবি? হ্যাঁ, তুই আমাদের কি দোকান গ্যারেন্টি দিবি আমাকে? তুই কি দোকান দিবি? গ্যারান্টি দেবো বলতে কি বলতো, তোর ওই আমাদের যেভাবে প্রশাসন আর সমিতি বলছে যে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? তো সেরকমই আমি গ্যারান্টি দেবো, যদি না হয় তাহলে পয়সা ওয়াপাস। এটা সমিতি বলছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ সমিতি বলছে। না, আমি একটা কথা বললাম তো লোকের সঙ্গে, হ্যাঁ तो वही কথা বলতেছে गारंटी होगा तब हम काम करेंगे, ऐसे थोड़े करेंगे, पहले हमको এখন ভাই নিবে না না অত কিছু। শোন দেখ, আমি যদি আমার পক্ষ থেকে টাকা লাগালাম, দেখাইতে হবে। এখন তোকে দিয়ে দিবে 3x4 এর দোকান, ওইখানে সবজি বেচার মতন, তো ওই টাকা তো ও নিবে না। না 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 সে তো জায়গা আমিও গিয়ে সরকারি দেখবো, জমিন আছে ভাই। ঠিক আছে? দেখ, সরকারি জমিন তো তো যেটা আছে সেটা মানে প্রশাসন বলতে পারবে, ওটা তো আর আমরা বলতে পারবো না, ঠিক আছে? আমাদের সঙ্গে ওই সমিতি যেভাবে কথা আছে, সমিতি আমাদেরকে যেভাবে বলছে সে বলছে। আমার কাছে এখন ওই 3 লাখ টাকা আমার কাছে নাই, ঠিক আছে? কিন্তু আমার 3 লাখ টাকা তুই কর এগ্রিমেন্ট। ওটাই তো। শোন, 3 লাখ টাকা দিয়ে আমাকে তুই 3 লাখ টাকা করে এগ্রিমেন্ট কর, কি তোর যখন অ্যালটমেন্ট হবে দোকান হবে তুই 3 লাখ টাকা করে তুই ওটার মধ্যে একটা দাম দর হবে, ওটা টাকা দিয়ে দিবে। আমার কথাটা পুরা শোন, ঠিক আছে? আমি এখন পার্টির থেকে নিব হচ্ছে 5 লাখ, ঠিক আছে? নিয়ে আমার 5 লাখ যে নেওয়ার ইচ্ছা হবে। আচ্ছা, আমি নিব 5 লাখ নিয়ে তোর আমার সমিতি থেকে যে টোকনটা আমাকে দিবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সেই টোকনটা আমি ওর কাছে দিয়ে রাখবো সিকিউরিটি। টোকন দিবে? হ্যাঁ টোকন দিবে। আচ্ছা, আমি ওটা সিকিউরিটি হিসেবে ওর কাছে রেখে দিয়ে একটা এগ্রিমেন্ট করে রাখবো।
তো ওরা কিভাবে এগ্রিমেন্ট করতে যায়, মানে কিভাবে দিবে দোকানটা? ওরা ওই যে তোর লটারি করে। মানে সরকারি হিসাবে দিবে না, মানে এমনি ব্যবসা না না করে দিবে? সমিতিগত হবে, তোর ইচ্ছা হবে না, তোর কি বলে তোর পার্মানেন্ট না, ঠিক আছে? পার্মানেন্ট টেম্পোরারি? টেম্পোরারি। তোর যেমন চম্পাশা মোড়ে সব দোকান যেভাবে বসে আছে সেরকম সব চম্পাশা আচ্ছা, জলের তুই দোকান সব তো তাহলে তো নাই, শোন না, আমি সকালে আসতেছি, হ্যাঁ? কয়টার সময় দোকানে আছিস? কালকে বৃহস্পতিবার আছে, দোকান বন্ধ আছে। আচ্ছা, তাহলে ভালোই আছে, তাহলে 10টার সময় পার্টিকে ডাকি, তুই সব বুঝাই দিবি। হ্যাঁ, শোন না কি বলতো, না আমি শোন তোর- ভাই, পার্টি ভালো আছে, মন্দির ঠিক আছে, তুই হ্যাঁ। বুঝাই দিবি, 10 লাখের কথা বলবি, হুম ঠিক আছে? তারপরে কথা হবে, আমি তোর সঙ্গে বুঝবো, আগে বসবো কাল, হ্যাঁ? না না ঠিক আছে, আমাকে কি আমার সত্যি টোকনটা নেওয়া হচ্ছে মধ্যে কথা, বুঝছিস? বাস ঠিক আছে। টোকনটা যদি মনে কর আমি যদি আমার নিজে না ঠিক পারি, আছে। ঠিক আছে? তাহলে 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 আমার মনে কর এসে করা ছাড়া দরকার নেই, তাহলে আমি নিয়ে রাখি। এটা আমাদের দিলীপ দা করতেছে সব, দিলীপ দা আমাদের, না ও তো আবার ইনভলভ আছে না সব জিনিসে। দেখ ইনভলভ আছে না নাই, আমাকে তো দিলীপটা বলে নাই, আমাদেরকে যা বলা হচ্ছে সমিতিগতভাবে বলা হচ্ছে, বুঝছিস? ওদের তো সমিতির মিটিং পেছনে, হয়েছিল। হ্যাঁ মিটিং তো হয়েছে, সমিতির পেছনে পুরো প্রশাসন আছে, প্লাস বৃহত্তর ব্যবসা সমিতি সবাই আছে, বুঝছিস? আর সবচেয়ে বড় কি বলতো, 100 জন একসঙ্গে বসে গেলে না ওটা মার্কেটই হয়ে যায়, বুঝছিস না? হ্যাঁ 100 জন বসে গেল, আর কে সরাইতে পারবে? হ্যাঁ শেষ হতে হবে, এইটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। 184 এখন- দোকান নাম্বার। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন এরকম আছে, ঠিক আছে? যা যা নিয়ে নেবে ওর দাম ওর 1 বছরের ডবল নিয়ে ভাই নেবে। আমরা একটা দোকান পাই যে ওইটা চিন্তা আছে, বাল আমি জেল খাটলাম ফালরাম, আমার দোকান পাই যে এটাই আমার চিন্তা ভাবনা আছে। যেভাবে হোক ব্যবসা সমিতির তো বাবার জমি না এটা, আর কেউ টাকা নিয়ে দিবে, তা আমরাও কোথায় আছি? আমরাও তো আছি, হুম কি ভাই? ঠিক আছে, অবশ্যই তো আছে, এখন এখন দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা কালকে সেটা দেখা করবো। কাউন্সিলর, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কাউন্সিলর দিবে। কাউন্সিলর দিবে, কাউন্সিলরই তো জেল পাঠাইছিল আমাদের। হ্যাঁ তাহলে 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 পাঠায় না, তুই জানিস না বলতো? সে তো সব জানাই আছে। এখন দেখ দেখ লোকাল প্রশাসন, হ্যাঁ ঠিক আছে, যে আচ্ছা, যেদিকে থাকে লোকালের না, উপরে কেউ নাই নাকি? লোকালি মেন, আর কেউ নাই? আর উপর উপর পর্যন্ত তো পারমিশন দেওয়া, আচ্ছা, ওর উপরে নাই? বলে একদম উপর পর্যন্ত পারমিশন দেওয়া। আর দেখ চম্পাশাড়ি মোড় যখন বসে প্রায় 50-60 বছর আগে, ঠিক আছে, হুম ঠিক আছে, চম্পাশাড়ি মোড় কি সবই তো সরকারি জমি না? হুম। তাহলে সেই জন্য মনে করো এক জায়গায় বসে গেলে ওটা 40-50 বছর এমনি চলে যায়। রিপোর্ট দিব আপনার কাছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ কালকে ওই। দেখা হবে। আছে তো ঠিক আছে, আমি বলছি তোকে এই কথা বলছি, আর তো কিছু বই নাই, লাগবে 3 লাখ টাকা, আমি তোকে যে চাবি হ্যান্ড ওভার করবো, ঠিক আছে? তুই আমার বাকি টাকা দিবি, একটা রেট ফিক্স হবে, কিন্তু আমাকে ওই স্টলটা নেওয়ার জন্য 3 লাখ টাকা পুরো পেমেন্ট করতে হবে। সেটা এখন না, যখন হ্যান্ড ওভার করবে তখন। আর আমি যেটা ওই যে 153 নম্বর ব্যবসা সমিতি লেখা আছে, টোকেন টোকেন, এটা তো নাম্বার আমারও আছে 88 নাম্বার আমার। তো তোমাকে ভাড়া তো পড়বে না, না আমার তো ওখানে ভাড়া পড়তেছে না। টোকন নাম্বার আছে, ওই টোকনের ওই টোকনের খেলা হবে, বুঝছিস? মনে কর ফার্স্ট ওটা একটা কথা বলি, আমি তোকে কালকে 1.5 লাখ টাকা দিয়ে দিলাম, কালকে তোর পজিশন থাকলো না, তো তখন তুই জমিতে আসবি তুই আবার, ওইটা নিয়ে নিবে। হ্যাঁ তখন তো তুই বলবি 3-এর জায়গা তুই 4 নিয়ে 4-এর 5 নিয়ে 3 লাখ টাকা তুই দিবি। তোর সঙ্গে তো আমার এগ্রিমেন্ট থাকবে তো আলাদা ভাই, এগ্রিমেন্টের কি ভ্যালু আছে ওর? তোর সঙ্গে তো এগ্রিমেন্টে থাকবে না। আর যে টোকনটা আমি তোকে টাকা আজকে দিয়ে দিব 1.5 লাখ টাকা, কি ভাই না? ওর দোকানে যদি ভেঙে যায়, ধর ভেঙে গেল, তুই তো কোনো দোকান নিবি আবার না, তো ওর পিছনে তোর পিছনে আমার যে দোকান আছে তার 110 ফুট ছাড়া আছে, কি বলিস রে? আমি কথা বলে আসি তো, রাস্তাতে 75 ফুট 75 ফুট আর তুই ছাড়া কথা বলে। শোন না, ওইসব চেক পেকে নাই, তোকে 1.5 লাখ টাকা দিলাম, ধর 1 লাখ টাকা দিলাম। না না, আমি দিলে নিচে নিবো না, কারণ কি আমার দরকারই পড়বে না। দেখ ভাই কথা হচ্ছে 50,000 টাকা ব্যবসা সমিতির বাকি আছে ওর। ওরে চেক আর কেস, আরে শোন ব্যবসা সমিতির 50,000 টাকা বাকি আছে ভাই শোন, আমি তো আসতে বলি, আমি তো একটা কথা বলি, 1 লাখ টাকা ওকে জমা দিতে হবে, 1 লাখ টাকা জমা দিতে হবে, আর 1.5 লাখ টাকা পয়সা দেওয়ার পরে, এটাই তো কথা হয়েছে। না তুই কি হচ্ছিস? আমি তোর সঙ্গে 3 লাখের ছড়া কথা বলবো না আর যে সৌদা আছে তুই কর না নিজে, তুই দিবি তো? ওটা তো আমি তোর সঙ্গে বসে কথা বলবো। আমার চেক আছে, না না না, ও না ওইটা আজকে নাই 5 দেখ লাখ ভাই, শোন কি বলতো, তোর মনে গিলতে আছে তাইতে বলছিস,
আমি অনেক আমি না কালকে তোর সঙ্গে একটা ডিলিট আমি তোকে একটা তোর সঙ্গে কথা বলি না তোর তোর জবানে অনেক কথা আছে, জবানে কিন্তু অনেক কথা আছে, দোকান জবানে অনেক কথা আছে, ঠিক আছে? আমি শুন না আমি বললাম 30 লাখ টাকা তোর সঙ্গে কথা হয়ে গেল একটা, তুই বলেছিস আমি বলবো 30 লাখে হবে না, আমি 20 লাখে দিব, তোর পোষাবে তারপরে তো দিবি তো, হ্যাঁ, এগ্রিমেন্ট করবি তো। হ্যাঁ করবো তো, যদি মনে কর আমার, দেখ ভাই, যদি মনে কর তুই বলি 20 লাখ টাকা, তো ঠিক আছে, কিন্তু আমার যেটা মিনিমাম রেট আছে সেটা আমি জানাবো, যদি হয় তাহলেই হবে, তাহলেই তুই আমাকে টাকা দিবি। আমি তো আর ডিলটা ফাইনাল করে তার টাকা নিবো না। শুনবো আমি ওটা বলি না, আমি কি বলছি বাজাজ কালকে দিলে এগুলো সব টান মিলে টাকাটা যে তুই নিয়ে দিয়ে দিবি তোর কাছে থাকলো না টাকা, তুই কোথা থেকে দিবি পরে টাকা। दिलीप बर्मन से जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं उनसे भी बातचीत करना बेहद ज़रूरी है और उनका पक्ष भी जानना ज़रूरी है। तो हम दिलीप बर्मन से बात करते हैं और उनका क्या कहना है ये सुनते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बताते चलूं कि ये जो विवादों से जुड़ा हुआ इस ज़मीन का, ये ज़मीन का जो टुकड़ा है इसका विवाद से नाता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस पे इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद उन्होंने आदेश भी जारी किए थे। उस वक्त सिलीगुड़ी के कमिश्नर IPS गौरव शर्मा थे और उन्होंने आनन फानन में कई भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे ढकेल दिया था। लेकिन दिलीप बर्मन का क्या कहना है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं हम उनसे सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त दिलीप बर्मन है और दिलीप दा, आपके ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स मेरे पास है, मेरे कुछ फ़ोन रिकॉर्डिंग्स भी हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ये वही ज़मीन है जिसको लेके मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया था। उनके निर्देश के बाद उस वक्त के जो पुलिस कमिश्नर थे गौरव शर्मा, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी थी जो आपके पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और अच्छा खासा उन्होंने वक्त जेल में बिताया था। लेकिन फिर से इस ज़मीन को लेके एक बार विवाद उत्पन्न हो रहा है और अब नाम आपका आ रहा है। देखिए मेरा नाम आ रहा है इसीलिए जो कि मैं देख के ये जितना सारा दुकानदार है 180 दुकानदार है इस तरफ, 180 दुकानदार का जो भविष्य है ये भविष्य के लिए हम आया, हमारा यहाँ पैसा का बात नहीं है, यहाँ व्यवसाय समिति का आदमी भी है, ठीक है। ये जो अभी ये जो थोड़ा आरोप भी है कि व्यवसायी समिति के लोग के साथ ही मिलकर ये धांधली हो रहा है। जो बोल रहा है, सुनिए धांधली कौन बोल रहा है, जिसका पहले धंधा में धोखा हो गया वो धांधली बोल रहा है, जिसका धोखा नहीं हुआ वो तो धांधली नहीं बोलेगा ना। जो ये 2018 साल में जो लोग दखल किया था, दखल करके लाख लाख पैसा कमाया, उसका तो अभी लाख लाख पैसा चुना लग गया, तो वो तो बोलेगा धांधली हो रहा है। तो उसका अगर उतना ही हिम्मत है तो सामने आके बात करें ना, क्या दिक्कत है, सामने आके बात करें व्यवसाय समिति। लेकिन जो वीडियो क्लिपिंग्स मेरे पास हैं और जो फ़ोन रिकॉर्ड मेरे पास है उसमें ये कहा जा रहा है कि दिलीप बर्मन कुछ लमसम अमाउंट, कुछ 3 लाख की बात कही जा रही है, कोई 1.5 लाख कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप दुकान दिलाने के रिटर्न में ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, ये जो अभी ये जो दुकान का पार्टीशन होगा ना, इसमें खर्चा होगा, खर्चा नहीं होगा तो क्या हम बनाएगा ना, मेरा घर बेच के बना देंगे। लेकिन ये तो पहले से ही विवाद विवाद सुनिए सुनिए, हमारा मेयर का साथ बात हुआ, हमको बोला इसको रेडी करके तुम इन लोग का साथ कर दो, ठीक है। ये जमीन साफ सुथरी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, तो फिर लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई थी? इसी जमीन को लेके तो गिरफ्तारी हुई थी ना। वो तो सरकारी जमीन था, तो ये तो सरकारी जमीन है, ये दिलीप बर्मन का जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है। ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन तो दिलीप बर्मन का जमीन नहीं है। तो जानकारी के मुताबिक ये NHI की जमीन बताई जा रही है। अब NHI की जमीन में ये काम कैसे हो रहा है? सुनिए, JNHI का जमीन है तो जो लोग पहले किया तो उन लोग को मालूम नहीं था NHI का जमीन था, इसीलिए तो जेल गए ना वो। तो ठीक है। तो अभी जो आपको DM SDO ये लोग जा आके देखा के गया, ये जो जितना दुकान है टेम्पररी यहाँ शिफ्टिंग करवाइए, तो टेम्पररी शिफ्टिंग अगर नहीं कराएं, शिफ्टिंग कितने दिन की? टेम्पररी मतलब तो टेम्पररी होता है, तो टेम्पररी कितने दिन के लिए? 2 साल, 3 साल, 5 साल? ये जो अभी जो मार्क हम लोग के पास जितना खबर है, ये इसको फिर टूटा है, बगल वाला जमीन भी है, वो कभी बोल रहा था इतना दिन जो एक मारवाड़ी का ज़मीन है, तो वो मारवाड़ी भी आज काल में तो इतना कागज़ दे के कॉर्पोरेशन में भेज दिया, ठीक है। तो उसको भी तो प्रमाण करना है ना कि उसका ज़मीन है कि नहीं है, ना सरकार का है, ना NH का है, ना किसका है, उसको तो प्रमाण करना पड़ेगा, ये तो सही है। तो लेकिन अगर सरकार अगर बोला, अगर NH हो जो को भी हो, वो तो ऑफिशियल काम तो हमारा कॉर्पोरेशन करेगा, वो करेगा, हमारा काम तो ऑफिशियल काम नहीं है। हमारा काम है, हमको जो ऑर्डर दिया है जो आप इसको इन लोग को लेके इसको कैसे सब आदमी को यहाँ घुसा सकता है, उसको अभी टेम्पोररी करवा दीजिए, ठीक है। ये तो बुरा बात नहीं हुआ, बुरी बात नहीं है, पर दादा आप मेरे सवाल को नहीं समझे। मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों को यहाँ पे
बसा रहे हैं। एक तो पहले से ही डिस्प्यूटेड मामला है जिसको लेके कई लोग, आपके जैसा कि मैंने कहा, आपके पार्टी के भी लोग, उसमें कुछ लोग शामिल थे, जेल खट के आ चुके हैं और ये मुख्यमंत्री का निर्देश था, उनके आदेश पे ये तमाम कार्रवाई हुई थी। अब डिस्प्यूटेड लैंड में फिर से कार्रवाई हो रही है, दुकान अलॉट हो रहा है, उसके रिटर्न में आप जो पैसे मांग रहे हैं वो जायज़ है, जैसे कि आप पे आरोप लगा है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये आरोप है। नहीं नहीं, आरोप देने से तो होगा नहीं। आरोप देने से दुकानदार को पूछिए ना, तो पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर जो पैसा दुकानदार दे रहा है वो इसका जितना खर्चा होगा, ये लोग अभी टेम्पोरेरी खर्चा कर रहा है, ये हम लोग नहीं कर, हम नहीं कर रहे, ये दुकानदार का खर्चा है। वो लोग जो दुकान करके तो ऐसे तो फाका जगह में बैठ नहीं जाएगा, जो उसका सामान चोरी होगा तो उसका जिम्मा कौन लेगा? वो तो कॉर्पोरेशन का जिम्मा है, वो मेरा जिम्मा नहीं है। कॉर्पोरेशन हमको बोला जो तो आप देख के इसको जितना 70, 80, 90 जितना भी दुकान बैठ सकता है अभी टेम्पोरेरी, इसको आप बैठा दो। नहीं तो मैंने सवाल किया था दादा, मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आप कह रहे थे टेम्पररी मतलब कितना होता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग का ये दावा होता है कि हम कुछ समय के लिए बैठ रहे हैं, हम बाद में हट जाएंगे, लेकिन फिर वो जम जाते हैं और सरकारी ज़मीन पे वो अपना मालिकाना हक जमाते हैं। सुनिए, ये जो इतना दुकान होगा ना, इसका ट्रेड लाइसेंस से लेकर सब कुछ तो कॉर्पोरेशन को देना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेशन अगर जिम्मा में है तो कॉर्पोरेशन में आएगा, तो ट्रेड लाइसेंस कॉर्पोरेशन नहीं देगा तो उसका तो दुकान नहीं हो सकता है। दादा, अगर आप बुरा ना माने तो लिखित आदेश देख सकते हैं क्या? क्योंकि आप पे जो आरोप लग रहा है, जैसे आरोप लग रहा है कि आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेड तो होगा कि जैसे कॉर्पोरेशन से पास हुआ है, आप यहाँ पे इन लोगों को बसाइए। को नहीं पूछ के आप मेयर साहब को पूछिए ना को भी। मेयर साहब तो आज में सिलीगुड़ी आया है, आज आने का बात था, आगे भी होगा, ठीक है, उनसे भी पूछिए। यहाँ जो टेम्पररी जो काम कर रहा है आदमी लोग, इसको अगर नहीं बना देगा तो ये दुकान कहाँ करेगा अभी? और 2 दिन बाद में जब दुकान टूटेगा, नेशनल हाईवे का काम बंद होगा, अगर आंदोलन शुरू कर देगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो जैसे नेशनल हाईवे का जब काम शुरू होगा, ज़मीन सोर्सेज के मुताबिक NHI की है, तो ये तो फिर भी टूटेंगे ना, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ बसाएंगे? ऐसे टूटेगा नहीं, बात सुनिए। ये जो वहाँ सॉइल टेस्ट भी करके गया, कहा कि उधर बिल्डिंग बनाएगा, ये लोग को उधर शिफ्टिंग करेगा, बाद में इसका भी मार्केट बनाएगा। वो हमारा काम नहीं है, मार्केट बनाने का काम है सरकार का। सरकार कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा सरकार का। लेकिन फिलहाल तो 2-4 साल जो अभी जो दुकान नहीं बन रहा है, ये 2-4 साल आदमी क्या भूखा बैठेगा क्या? इतना जो अभी 180 दुकान जो टूटेगा, ये 180 का कितना परिवार है? आपके पर जो आरोप लगे उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप कर रहा है इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको प्रमाण दिखा दे, कोई प्रमाण दिखा दे। दिलीप वर्मन पैसा लिया, पैसा लेके काम करा रहा है। आज पैसा जो भी ले रहा, जो भी खर्चा है, यहाँ व्यवसाय समिति है, व्यवसाय समिति का सब आदमी है, जितना दुकानदार सबको मालूम है। दुकानदार चाहता है कि ऐसे हम लोग टेम्पोररी जितना खर्चा हो रहा है वो खर्चा करके हम लोग इसमें घुस जाए। जब 4 साल 5 साल बाद में फिर दुकान उधर मिलेगा, वो लोग उधर शिफ्टिंग हो जाएगा। वो तो सरकार पैसा लेगा उस टाइम में, तो हम लोग पैसा नहीं लेंगे। हम लोग लेंगे क्या? अभी क्या है लेंगे? अभी जो खर्चा है उसको तो देना पड़ेगा ना, उसको तो ये जो वो अगर खर्चा के पैसे दादा फिर आप क्यों लेंगे? वो तो खर्चा जो उनका होगा वो अपने हिसाब से दुकान बनवाएंगे। अगर मुझे कुछ बनवाना होगा, मैं सर मेरा सवाल सुनिए, सवाल हमारा समाज है, आपका सवाल मेरा समाज है। आप जितना भी घुमाइए, हमको घुमा नहीं सकते आप। नहीं, आप नहीं घुमा सकते हमको। नहीं, फर्स्ट सवाल हम भी कर रहे हैं। कोई फ्री में कोई लेबर काम फोकट में नहीं करेगा। आप जो अभी जो रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, आपको भी तनख्वाह मिल रहा है, बिना तनख्वाह में आप भी रिपोर्टर का काम नहीं करेंगे। तो हमारा यहाँ जो मजदूर काम कर रहा है, यहाँ जो लेबर दुकान बना दे रहा है, टीना का घेरा दे या गाँठनी करके दे, तो उसका तो खर्चा लगेगा। तो दुकानदार जब देने में दिक्कत नहीं दुकानदार का, तो हमका क्या दिक्कत है? वही दुकानदार तो ने कहा है कि आप पैसे कर रहे हैं। जो दुकानदार बोल रहा है उसको हमारा सामने लेके आइए। हमारा सीधा स्पष्ट बात है, जो दुकानदार बोल रहा है कि दिलीप दा पैसा लिया है, तो वो दुकानदार को ले आइए, हम देख लेंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आप पाक हैं, पवित्र हैं, कहीं कोई जो सिर्फ आपको बदनाम किया जा रहा है। लगाना बहुत कठिन बात है, मेरा ऊपर दागी लगाना बहुत कठिन बात है। ये आदमी को, ये 46 नंबर वार्ड में 23,000 वोटर है, सबसे पूछ लीजिए। और जो भी दागी लगाने जो खोज रहा है, उसका पेट में लात पड़ा है, इसीलिए दागी लगाने खोज रहा है, और दूसरा कोई बात नहीं है यहाँ। मतलब लोग रिवेंजफुल होके आपको बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, कल सुबह उठिए, सुबह जाइए, शाम को जाइए, ये माथा से जितना दुकान टूट रहा है उन लोग को पूछिए, जी। आप हमसे क्यों नाराज हो रहे हैं? हम तो सिर्फ सवाल करें, आपके ऊपर जो लगा सिर्फ वही पूछ रहे हैं। सुनिए, जैसे नाराज होने का एक ही बात है, आप बार बार एक ही बात बोले, आप पैसा लिया, हमको पैसा लिया, तो हमने नहीं पूछा, ये आपके ऊपर आरोप है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी तो है,
प्रधानमंत्री तो जो काम कर रहा है उसको भी तो गाली मिल रहा है, मुख्यमंत्री इतना काम करने के बाद भी तो गाली मिल रहा है। तो दिलीप बर्मन के 180 का आदमी का अगर रोजी रोटी कर देगा तो गाली दिया तो कौन सा भारी पड़ गया। मतलब आप काम कर रहे हैं लेकिन लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो करेगा, जिसका पेट में लात पड़ा है वही कोशिश करेगा, और कोई दूसरा कोई कोशिश नहीं करेगा। जो गरीब आदमी है ये लोग वो काम में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका रोजी रोटी का जगह। रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये ज़मीन NHI और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़मीन बताई जा रही है, और राज्य सरकार या SMC की अगर हम बात करें तो ऐसे ही इस ज़मीन के टुकड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लेकिन अगर दिलीप बर्मन साहब की बातों को ही सही माने तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। ये जो 180 दुकानों को देने का आवंटन का ये जो दावा कर रहे हैं, इसके लिए क्या लिखित कोई कार्रवाई हुई है? ये जो 3 लाख लेने की ये बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है 3 लाख, कोई कह रहा है 1.5 लाख, कोई कह रहा है 5 लाख, तो ये पैसे लेने के बाद जो ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, क्या इसकी कोई लिखा पढ़ी कहीं हुई है? क्योंकि अगर हम सरकारी चीज़ों की बात करें तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, दुकानों के भी आवंटन की एक प्रक्रिया होती है। क्या इसके लिए कोई लिखित कार्रवाई की गई है? क्या किसी को डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है? और ये 3 लाख जो ले रहे हैं या 1.5 लाख जो ले रहे हैं या 5 लाख जो ये ले रहे हैं, उसके बदले में क्या ये कोई सरकार की तरफ से या SMC की तरफ से कोई रिसिप्ट जारी कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इसमें DM का भी नाम लपेट लिया, इसमें इन्होंने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के DM का भी नाम लपेट लिया, इन्होंने इसमें जलपाईगुड़ी के भी DM का नाम लिया, और साथ ही सिलीगुड़ी शहर के मेयर गौतम देव का भी इन्होंने नाम लिया है। तो क्या ये एक प्रक्रिया की तरह अगर ये काम कर रहे हैं और 180 लोग का ये जो बात कर रहे हैं, जिसे ये दुकान आवंटित करने की बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्या इन्हें कोई लिखित कार्रवाई की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं, और इन तमाम सवालों के घेरे में खुद ब खुद दिलीप बर्मन साहब फंसते आए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें दिलीप बर्मन साहब कह रहे हैं कि ये अपने घर से पैसे थोड़ा ना लगा के दुकान बनाएंगे, यानी कि इन लोगों से ये पैसे ले रहे हैं। और सवाल ये उठता है कि सरकारी चीज़ के लिए, जहाँ पे, क्योंकि ये ज़मीन जिस पे ये लोगों को दुकान बनवाने का, और ये मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये वही ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे गलत तरीके से कब्ज़ा करने पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद निर्देश दिया था। उस वक्त के पूर्व सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर IPS गौरव शर्मा को, और उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। शहर में ये सुर्खियां बटोर रही थी ये खबरें, और कई लोगों ने कई रातें सलाखों के पीछे गुजारी थी। तो ये ज़मीन का टुकड़ा, ये हिस्सा विवादित है, और इस विवादित ज़मीन के टुकड़े को कोई ऐसे ही कैसे बेच सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। जैसा कि कहा गया कि इसमें 180 लोगों को दुकानें दी जाएंगी, जो पहले से निर्धारित है। हालांकि दोबारा बता दूं कि सरकारी चीज़ों में जब इस तरह की बातें आती है तो उसका आवंटन किया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे दुकानदार पहले से सुनिश्चित है। अब अगर ऑन एन एवरेज अगर आप 5 लाख रुपए लेके चलते हैं तो 180 इंटू 5 लाख रुपीज़, यानी कि लगभग 9 करोड़ का ये घोटाला है। तो क्या सरकार को 9 करोड़ का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं काउंसलर साहब दिलीप बर्मन? ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।